Good morning, students. How are you? I hope all of you are well. Today, we have to discuss about factorial notation. Factorial notation क्या है? इसका कहाँ पर यूज है? क्योंकि हम परमुटेशन कॉम्बिनेशन कर रहे हैं, तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन में फैक्टोरियल का काफी यूज होता है. Factorial means the continued product. The notation is here n factorial. This one n factorial. N factorial means that is the continued product. जैसे हमारे पास ये है ना कि this one, just wait, n factorial, that is the product of first n natural numbers. ठीक है, यानी कि अगर हमारे पास 1 into 2 into 3 into up to n minus 1 into n, ये continued product है and therefore that is known as n factorial. ठीक है, तो continued product है उस नंबर तक जहां तक हमने फाइंड करनी है, और ये जो सिंबल है एक्सप्लेनेशन का, that is known as factorial. ठीक है, it means n factorial means 1 into 2 into 3 up to n. ठीक है, and now 1 factorial means 1. ठीक है, 1 factorial means 1, and now 2 factorial means 1 into 2, and now 3 factorial, that means 1 into 2 into 3. ठीक है, 1 into 2 into 3, that is the 3 factorial. And now we have the 4 factorial, 1 into 3 into 4, that is known as 4 factorial, and so on. ठीक है, और जो 0 factorial है, that is always equal to 1. 0 factorial is equal to 1. And now 5 factorial. This 5 factorial we can write into 5 into 4 factorial. ठीक है, क्योंकि जो 5 factorial है इसके continued product 5 factorial is equal to क्या होगा हमारे पास 1 into 2 into 3 into 4 into 5. ठीक है, और ये 1 into 3 into 4 ये हमारे पास किसके इक्वल होता है 4 फैक्टोरियल के अंदर, क्योंकि अप टू 4 तक है, multiplied by 5, and therefore that's why we have to write 5 factorial is equal to 5 into 4 factorial. And similarly this 4 factorial we can write 4 into 3 factorial, it becomes 5 into 4 into 3 factorial. And now this 3 factorial we can write 3 into 2 factorial. 5 into 4 as it is है, और 3 factorial को हमने क्या लिखा 3 into 2 factorial. ठीक है, और जो 2 factorial है that can be written as 2 into 1 factorial. It means we can say 5 factorial is equal to 5 into 4 into 3 into 2 into 1. ठीक है, अब हमारे पास कोई नेचुरल नंबर है. ठीक है, नेचुरल नंबर n के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, दिस n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल. ठीक है, और जब n 2 से ग्रेटर है देन वी कैन यूज n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल. Okay, I hope you understand this. And then if n is greater than equal to 3, then we can write n into n minus 1 n minus 2 into n minus 3 factorial and so on. इस तरह से हम इसको write कर सकते हैं. Okay, I hope you understand about the factorial. Yes, now we have to evaluate this 5 factorial. 5 फैक्टोरियल को अभी हमने किस में किया था 5 into 4 into 3 into 2 into 1. ठीक है, दैट इज इसको हम कंटिन्यूड प्रोडक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, वी गेट 120.
ओके, क्योंकि 2 into 3 is 6, 6 into 4 24, 24 into 5 that is equal to 120. Yes, now we have 7 factorial. 7 factorial means 1 into 2 into 3 into 4 into 5 into 6 into 7. तो 5 तक की प्रोडक्ट हमारे पास क्या थी 120. 120 को 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 720 और 720 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे we get 5040. Okay, and now we have to find this. Which term? 7 factorial minus 5 factorial. ठीक है, 7 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी आ गई है 5040 और 5 फैक्टोरियल दैट इज इक्वल टू 120. अब दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए एंड देयरफॉर यू विल गेट 4920. ठीक है, दैट इज द आंसर इज 4920. Okay, I hope you understand this. Factorial means continued product. And now we have to compute 7 factorial upon 5 factorial and 12 factorial upon 10 factorial into 2 factorial. ठीक है, तो 7 factorial की वैल्यू हमारे पास क्या थी 5040 और इसको हम दूसरे वे से भी कर सकते हैं. ये जो 7 फैक्टोरियल है, क्योंकि हमें कैलकुलेशंस कम से कम करनी पड़े तो हम क्या करते हैं, ये जो 7 फैक्टोरियल बाय 5 फैक्टोरियल है, 7 फैक्टोरियल को हम ये राइट कर सकते हैं 7 into 5, 7 into 6 into 5. ठीक है, 7 into 6 into 5 फैक्टोरियल, 5 के ऊपर फैक्टोरियल है ये. ठीक है, और डिनोमिनेटर में 5 फैक्टोरियल था, अब ये 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल कर दिया एंड देन वी गेट 7 into 6 दैट इज इक्वल टू 42. ठीक है, वी गेट दिस 7 into 6 दैट इज इक्वल टू 42. यानी कि ये जो बड़े वाला जो नंबर है उसको हमें उतने फैक्टोरियल को जो डिनोमिनेटर के नंबर है वहां तक हम चेंज करते जाते हैं. हमने किसका यूज किया, हमने इस कंसेप्ट का यूज किया n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n into n minus 1 factorial. Okay, and now see the next example. We have 12 factorial upon 10 factorial into 2 factorial. अब ये जो 12 factorial है इसको हमने क्या लिखा 12 into 11 into 10 factorial. ठीक है, 12 into 11 into 12 फैक्टोरियल और डिनोमिनेटर में क्या है 12 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल. ठीक है, ये दोनों है हमारे पास. ठीक है, अब ये 10 फैक्टोरियल तो कैंसिल हो गया, वी गेट हमारे पास क्या बनेगा 12 into 11 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल. ठीक है, और जो 2 फैक्टोरियल किसके इक्वल होता है वो 2 के इक्वल होता है, तो डिवाइडेड बाय 2 यानी कि कैंसिल हो गया, तो इट बिकम्स 6 into 11 that is equal to 66. ठीक है, I hope you understand this. Yes, now we have the next example. We have to evaluate n factorial upon r factorial into n minus r factorial when n is equal to 5 and r is equal to 2. n यानी कि हम क्या करते हैं n की वैल्यू 5 और r की वैल्यू हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे 2 जो हमने फाइंड करना है. ठीक है, ये हमने पुट किया 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इनटू 5 माइनस 2 फैक्टोरियल. अब ये जो 5 माइनस 2 फैक्टोरियल है 5 माइनस 2, 5 माइनस 2 क्या हो गया 3, ब्रैकेट के अंदर है ना, फैक्टोरियल तो बाहर था हमारे पास. ठीक है, वी गेट 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इनटू 3 फैक्टोरियल. यानी कि अब हम जो 5 फैक्टोरियल है इसको क्या लिखेंगे 5 into 4 into 3 factorial divided by 2 into 3 factorial. 2 factorial तो हमारे पास 2 into 1 होता है. ठीक है, इसलिए 2 हो गया और 3 फैक्टोरियल को हम स्प्लिट नहीं करते क्योंकि न्यूमरेटर में भी 3 फैक्टोरियल है मैक्सिमम और यहाँ में 3 फैक्टोरियल, दैट विल बी कैंसिल और ये इससे भी कैंसिल कर देते हैं. इट बिकम्स 4 to the 2 to the 4 and therefore we get 5 into 5. ठीक है, तो 5 into 2, 5 into 2 that is equal to 10. Hence we get the answer is 10. I hope you understand. ठीक है, and now we have to evaluate the value of x.
if x 1 by 8 factorial plus 1 by 9 factorial is equal to x by 10 factorial। ठीक है, ये इक्वेशन गिवन है फैक्टोरियल के फॉर्म में। अब हमें इसको फाइंड करना है। तो 1 बाई 8 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल को क्या लिखोगे, इसको एज इट इज रहने देते हैं। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा डिफरेंट वे में करते हैं। तो यहाँ पर जो 1 बाई 9 फैक्टोरियल है, 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 इंटू 8 फैक्टोरियल, दैट इज इक्वल टू x अपॉन 10 फैक्टोरियल। अब 10 फैक्टोरियल को 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल। ठीक है, अब ये देखिए 8 फैक्टोरियल तीनों स्टेप्स के डिनोमिनेटर में है, तो इसको आप कॉमन ले लीजिए। 1 बाई 8 फैक्टोरियल इज कॉमन, देन इट बिकम्स 1 प्लस 1 बाई 9 प्लस that is equal to 1 by 8 factorial into x upon 10 into 9। ठीक है, मैंने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड से 8 फैक्टोरियल कॉमन लिया, राइट हैंड साइड में भी पहले लिख लिया। अब ये दोनों सेम टर्म है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, एंड वी गेट 1 plus 1 by 9 is equal to x by 10 into 9, that is 90। ठीक है, 1 plus 1 by 9 it becomes 10 by 9, that is equal to x by 90। ठीक है, अब इसको हम कैंसिल कर देते हैं। ये क्या हो गया, 10 x is equal to 10 into 10, that is equal to 100। that is the answer। I hope you understand this। देखिए सेम वे में हमने उसको किया हुआ है। तो 8 फैक्टोरियल कैंसिल किया, we get 1 plus 1 by 9 is equal to x upon 10 into 9, and therefore 10 by 9 is equal to x by 10 into 9। 9 से 9 cancel, we get x is equal to 100। ठीक है, I hope you understand this। Is there any problem, then you can contact me। ठीक है, फैक्टोरियल का काफी यूज है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में। Today you have to do the second worksheet। Thanks and have a